તો મિત્રો ફાઇનલી આપણે કચ્છથી આપણા ભાઈબંધો આવી ગયા છે ખાવડા ખાવડા આપણે કાળો ડુંગર જ્યાં નજીક પડે છે અહીંયાથી ખાવડાથી મારા બધા ભાઈબંધો છે મારા ને મારા પપ્પાના. તો એ અહીંયા કણે જોવા આવ્યા છે કે આપણે ઝાલાવાડમાં ખેતી કેવી રીતે કરી, શું કાંઈ કેટલો ઉતારો આવે, કેટલી નીપજ આવે, ખર્ચો કેટલો થાય, મજૂરી કેટલી થાય, બધું પાણી કેવા, બધું માહિતી આપણે આ ભાઈની આપવાની છે. કેટલા બોર ઊંડા, કેટલા પાણી કેટલા ઊંડા છે કે બધું માહિતી એમને જોતી તો આવ્યા છે. તો આપણે આજ આ અભલો છે. તમારું નામ શું ભાઈ? અસલમ. તમારું? હનીફ. તમારું? મામદભાઈ. આ બધા આપણા ભાઈબંધ આવ્યા છે. તો આપણે એમને આજ ખેતીમાં શું કાંઈ કેટલી નુકસાની આવે, કેટલી આવક આવે, બધી માહિતી આપવાના છે. चलो अशफाक भाई, हम आपकी वाड़ी पे आ चुके हैं, तो आप हमें बताएंगे तो आपने ये क्या बोया हुआ है? अभी तो हमने यहाँ मकाई बोया है. इसका कोई हम खाने के लिए नहीं यूज करते, वो हमारा ढोर होता है ना, भैंसों गायों वगैरह, उसके लिए लगाते हैं. अच्छा, और कुछ इसका यूज नहीं करते खाने में मकई. अच्छा, ये आप अपने जो गाय भैंस वगैरह उसको खिला देते हो? उसके लिए. अच्छा. और कुछ नहीं, इसको खाने के लिए नहीं बोया है. अच्छा, और आपकी वाड़ी में आपने क्या क्या बोया हुआ है? अभी तो ये मकाई है ढोरों के लिए. हाँ. बाद में दिवेला थोड़ा सा है. अच्छा. 20 एकड़ का दिवेला है. अच्छा. और 35 बीघा का जीरू बोया है. 12 बीघा का लहसुन बोया है. और तो देखा जाए तो इतना ही है, और कुछ ज्यादा नहीं है. और ये जो दिख रहा है ये अंडा सब आपका है? ये सब हमारा ही है. आपका है? તો મિત્રો આપણે કચ્છથી આપણા ભાઈબંધ આવ્યા છે, બધાય વાડીની મુલાકાતે આવ્યા છે. અહીંયા હું વાવી આપણે શું અહીંયા આપણે ઝાલાવાડમાં કેવી રીતે ખેતી થાય એ બધું આમળાને જાણવાનું છે. તો આપણે એમને બધી માહિતી આપશી. તો મિત્રો આપણે હવે અસલમભાઈને આ દિવેલાના ખેતી કેવી રીતે થાય, વીઘે કેટલો ઉતારો આવે, શું કાંઈ ખર્ચો કેટલો થાય એ બધું અસલમભાઈને જણાવશી. તો અસલમભાઈ, તમારે કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો. તો આ જે તમે વાવો છો તમારી ખેતી છે આ, હા, આમાં તમને કેટલી મહેનત લાગે, કેટલો ખર્ચો લાગે? મહેનતમાં તો એવું હોય કે આમાં બીજું મજૂર ઓછા થાય, મજૂરનો જ્યાદા ખર્ચો ન આવે. બધી ખેતીમાં સારામાં સારી ઉપજ આવે તો આ દિવેલાની આવે. એનું કારણ કે આમાં ખર્ચો જાજો થાય નહીં, ખાતર ને પાણી આને દિયો એટલે આ થયા રાખે. ઉત્પાદન આનું વીઘે 25 મણ ઉતારો આવે. બરોબર. વીઘે 25 મણ. બીજો કઈ ખર્ચો થાય નહીં. આપણે નીંદવાનો જ્યારે ચોમાસામાં વાવી ત્યારે આનો ખર્ચો થાય, બાકી કઈ ખર્ચો હોય નહીં. બાકી આને તમે ઉરિયા ને પાણી પાપા કરો એટલે આનો ઉતારો સારો જ આવે. 25 મણ થાય વીઘે. બરોબર. એટલે આપણે 1 વીઘામાં 25 મણ થાય? હા, 1 વીઘે 25 મણ થાય. બરોબર. સારી જમીન હોય, સારી મહેનત કરે, માવજત કરે તો વધારે થાય, 30 થાય, 35 થાય. પણ આપણે અહીંયા કણે અત્યારે 25 નો ઉતારો આવે. તો આપણે બધાએ અશફાકભાઈ ની મુલાકાત લીધી ને આપણે જોયું કે આ એડામાં એ લોકો કે છે કે 1 વીઘામાં 25 મણ આ દિવેલા ઉતારો આપણે આપે. તો આગળ આપણે ચાલીએ અશફાકભાઈના જીરો જોવા માટે. હું તમને અસલમભાઈ એક વાત કહું. હા. પેલા તો આપણે આ દિવેલા રહ્યા ને, એ અમે પાછળથી વાવેલા છે. આ ફાંડું તમે જોઈ શકો છો. આમાં 2 फसल बोया था, 2. अच्छा. एक मगफली का बोया था. मगफली का. वो बाद में निकाल लिया मगफली. अच्छा. बाद में इसको थोड़ा सा खाद बाद डाल के और वो जो मिनी ट्रैक्टर अपना था ना, उससे इसको जुताई कर दिया. बाद में इसको खातर पानी सब पिलाया तो ये ऐसा हो गया है. इसमें 2 फसल लिया है हमने. ये तो एरंडा का आ जाएगा और एक मगफली का भी ले लिया. अच्छा, यानी कि आपने इसी जमीन में से हाँ, 2 फसल का फायदा उठाया है. हाँ. अच्छा. अभी इसमें मगफली बोया था, जो वो उस पर दिवेला है ना, उसमें कुछ नहीं बोया था. इसमें हमने मगफली पहले तो बोया रखा था. बाद में इसको जो इसकी पाली होती है ना, वहाँ इसको बो दिया था. तो ये जो आपका मगफली था वो कितने बीघा में था? वो ये जितना है उतने में ही था. 6 बीघा में था मगफली. 6 बीघा में. हाँ. तो ये जो दिवेला है उसके साथ जो मगफली था उसमें से आपको मगफली कितना हुआ? मगफली अच्छा रहा है. उसमें क्या था, जो बारिश हुआ था ना, तो उसकी समय बुआई समय उसका थोड़ा सा गीला था ना, तो सरखा बोया नहीं था, इसलिए उसका कम उतार आया है. अच्छा. ऐसे तो 6 बीघा में 100 मण हो गया है. अच्छा. 100 मण तो भी हो गया, अच्छा उतर आया है. 100 मण हो गया. हाँ. तो इसमें जब आप मेहनत मजदूरी सब लगाते हो तो आपकी मेहनत मजदूरी कितनी लगती है? आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ बचत होती है? बचत तो होगी ना. अच्छा, ऐसा इसमें जो 25 मण होता है ना, उसमें से ज्यादा तो नहीं, पर 5 से 7 मण उसमें सब खर्चे में निकल जाता है. 7 मण बाकी बचता है, वो हमारे साथ बचता है. अच्छा, ऐसा होता है. ये फसल है ना, वो ज्यादा अच्छा रहता है सबके
ढूंढना। अच्छा दोस्तों, आपने देखा कि अशफाक भाई ने बताया कि हमारी मूंगफली में 1 बीघा में यानी 25 मन रहता है, तो उसमें से 7-8 मन यहाँ खर्चा हो जाता है। तो हमारे इंडिया में जो है खेतीबाड़ी की कोई कदर नहीं करता है। तो देखो भाई, खेडूत लोग जो है वो मेहनत करके, हल चला के, अपनी मेहनत मजदूरी करके ज़मीन जो है अपना कभी भी पैसा नहीं रखती है। ठीक है, मेहनत कभी किसी आदमी का नहीं रखती है। हाँ। तो अभी अशफाक भाई ने बताया कि हम 25 मन है, उसमें से 7-8 मन जो है वो खर्चा लग जाता है और 16-17 मन हमें फायदे में रहता है। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़मीन में से हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो अशफाक भाई चले आगे चलते हैं। असल दिख रहा है, लेकिन ये होता भी नहीं है। इसमें ज्यादा जो कोई रोग आ जाता है तो ये पूरा सूख जाता है, खराब हो जाता है। इसमें कुछ कह नहीं सकते, ये ले सकते भी नहीं ले सकते भी, अच्छा, पता नहीं, ऐसा है। लेकिन एक बात बताना चाहूँ तो जो अच्छा जीरा रहता है बढ़िया सा ऐसा सब, तो बीघे 10-12 मन हो जाता है, कभी कभी 15 मन भी हो जाता है, 17-18 मन हो जाता है। आपको हमारी इस जमीन पे तो हमको ज्यादा उत्पादन नहीं होता है। हमने अगली बार बोया था तो 6 मन ही बीघे उतार आया था इसका। अच्छा, इसका आपको 1 बीघे में 6 मंथ आया था। का आया था। अच्छा, तो भाई का कहना है कि हमको इस जमीन में जब हम खर्चा करते हैं, बीज लेते हैं और मेहनत मजदूरी जब करवाते हैं, कोई भाई तो अभी देखो ये एक इनका बेटा है और इनके पापा है, ये 2 लोग रहते हैं और इतनी बड़ी इनकी वाड़ी है, तो ये 2 लोग काम नहीं कर सकते हैं। इनके पास मजदूर भी रहते हैं, तो मजदूरी देनी पड़ती है। सब मिला के अब अगर हम हिसाब लगाना चाहें तो ये सब अगर 12 महीने के हम हिसाब लगे तो इनको सब मजदूरी भी 200-400 रुपये ही बचती है। तो एक इस बात हिसाब बता से दूं मैं, तो हमको पहले तो हमारे यहाँ 10 से 12 मजदूर रहते हैं। हाँ। वो सबको खाना पीना पिलाना पड़ता है ना, वो तो हाँ। उसको यहाँ मेहनत करते हैं, हमको खाना पिलाना पड़ता है। अच्छा, એટલે उसको हमको ज्यादा से 4 से 5 लाख रुपये तो सब मजदूरों को खाने पीने में ही चला जाता है, ये और कितने उसका ऊपर हो जाता है तो उसके भी कुछ बचता नहीं है। सब मजदूर अच्छे होते हैं तो मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। हमारा अगले मजदूर था ना, हाँ। असलम भाई, उसने हमने ज्यादा ऊपर उसको दे दिया था, तो उसने हमारा तभी घाटा हुआ था। मजदूर के पास हमको लाख रुपये लेना चाहिए था, तो वो तो अब दे नहीं सकता, उसके पास तो कुछ है नहीं। मजदूर मेहनत करते हैं तो वो कैसे देंगे? ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। क्या इसमें क्या है, मजदूरी ज्यादा हो जाएगी तो वो हमारा भागीदार है, उसमें तो उसको कुछ बचा ही नहीं ना। अच्छा, इसमें कम उतर आएगा और ज्यादा मजदूरी चढ़ जाएगी तो उसको भी नुकसान होता है। हमको भी होता है और उसको भी होता है। उसको होता है तो हमको भी होता है। तो आप इधर पानी लगाते हैं तो आपके लाइट बिल नहीं ज्यादा होता है? कैसा है लाइट बिल? तो हम अभी यहाँ हमने 80-90 बीघा का पूरा बुआई किया है, तो हमारे यहाँ 5-6 मोटर चलता है, एक कैनल पे चलता है, तो सब मिला के मंथली 30-40 हजार रुपया बिल आता है, और 2 मंथ का बिल आता है, 2 मंथ का 30-40 हजार रुपया बिल आता है। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि जब आपकी फसल कभी कभार खराब हो जाती है और उस हिसाब से मजदूरों को भी आप जैसे कि 25% उनको देते हैं, तो जब फसल खराब हो जाती है और मार्केट में इसका रेट भी नहीं रहता है तो बेचारे मजदूरों को भी कुछ नहीं बचता है और आपको भी घाटा होता है। और अभी अभी आपने बताया कि भाई हमने मजदूरों को ज्यादा पैसे दे दिए थे, यानी कि 1 लाख रुपए ज्यादा दे दिए थे और आपको अगली साल घाटा भी हुआ था। लहसुन का भाव नहीं था और थोड़ा जीरो भी अभी तो आपका खराब था या नहीं, तो उन मजदूरों का यानी कि 1 लाख रुपए का घाटा हो गया। तो वो मजदूर तो 1 लाख रुपए दे नहीं सकते, फोर्स तो नहीं कर सकते ना, उसको तो मार सही बात है, धमका भी नहीं सकते। उसने भी काम किया था, वो तो किया है, हमने माफ कर दिया लाख रुपया। चलो कुछ बात नहीं, उसने काम किया था तो छोड़ दो। तो भाई देख सकते हैं जो गरीब लोग और खेडूत, तो आप देख सकते हैं कि इनके पास जो काम करते थे वो भी खेडूत थे और ये खुद भी खेडूत हैं। तो अभी इन्होंने कहा कि उन लोगों का 1 लाख रुपए का घाटा हो चुका था, तो वो बेचारा मजदूर आदमी है, मजदूरी करके 1 लाख रुपया कहाँ से देगा? अगर उनको समझ लो कि 300 रुपया दिहाड़ी है, वो अपना घर चलाए या इन लोगों का 1 लाख रुपया भरे, इनकी वाड़ी से चले गए। ये फसल अगर मार्केट में ज्यादा रहेगी तो मजदूरों को भी फायदा होगा और खेडूतों को भी फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।